Hello friends, recently CBSE updates IP syllabus for session 20 and 21. In previous video, I will explain all the detail of the syllabus. Now, from video 2 onwards, we will start our syllabus. Initially, we start our syllabus from unit 3, which is computer network, which is easy and theoretically. So let's move. In computer network, we will start from data communications. Like human communications, when two or more humans can communicate with each other, is called as human communications. Similarly, two or more computers can communicate with each other by sharing of data. जिस तरह से दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया सेंडिंग मैसेज, दैट इज कॉल्ड एज डाटा, लाइक व्हाट्सएप, लाइक वीडियो और एनी अदर मैसेजेस. Whenever we communicate through computer, this is known as data communications. Here we see there is a model called as data communication model, which having 5 important concepts. First one is sender. Sender is a device which can send data. Another, receiver. Again, receiver is device which can receive data. Third one is medium. Medium is a physical path between sender or receiver which connect sender or receiver so that sender can send message or data via medium to receiver. And the message is the fourth component, which is most important. And last one, protocols. Protocols are set of rules that governs data communications. For example, जिस तरह से हम आपस में बातचीत करते हैं, सपोज कीजिए राम explains some topic to Shyam. In this case, Ram is a sender, Shyam is a receiver, air is a media. Subject जो है वो हमारा मैसेज होगा. And of course, protocols are some rules like language or words of Shyam and Ram must be same. मान लीजिए अगर श्याम हिंदी समझता है और राम चाइनीज समझता है, तो दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो प्रोटोकॉल आपको ये एक्सप्लेन करता है कि दोनों की लैंग्वेज सेम हो ताकि दोनों एक दूसरे को मैसेज को समझ सके. सो यही 5 कंपोनेंट मिलकर डेटा कम्युनिकेशन को बनाते हैं. सेंडर की हम लोग बात करें, द फर्स्ट कंपोनेंट, तो सेंडर इज ए डिवाइस विच सेंड डेटा. इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, वीडियो कैमरा, एनी डिवाइस विच इज एबल टू सेंड डेटा is called as sender. Second one is receiver. Again, receiver is a device which receive data. It can be computer, telephone, fax machine, printer, etc. Anything that is able to receive data. Third one is media. Media is nothing, it is a medium or transmission media between sender and receiver used to transfer message
from sender to receiver. It can be wired or physical or wireless. In next video, we will explain kinds of medium. Then the fourth component is message or data. It is the information which sender send to receiver. It can be in form of text, number, audio, video or images. And the last one is protocols. Again, a set of rules that governs that data communications. अगर हम बात करें तो ये सिंपल एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू डिवाइसेस ताकि एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ सके. विदाउट प्रोटोकॉल वी कैन से दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड तो होंगे बट एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सो इन्हीं 5 चीज़ों से डाटा कम्युनिकेशन बनता है. नाउ अब हम इन 5 को ही डिवाइड कर लेते हैं 2 मेजर कैटेगरी में. फर्स्ट वन इज नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स सेंडर रिसीवर मीडिया. जब ये आपस में कनेक्ट हो जाता है सेंडर रिसीवर वाया मीडिया, इट्स बिकम अ नेटवर्क्स. एंड द सेकेंड वन इज सर्विस विच इंक्लूड्स प्रोटोकॉल एंड messages. So in our subject we will learn about different kind of networks and their services. Networks, most popular example of networks are LAN, MAN or WAN, and most popular example of services is internet. We all know about the internet. It is service, and services run on networks. अगर नेटवर्क नहीं होगा तो सर्विस भी नहीं होगी. जैसे इंटरनेट इज़ अ सर्विस, और अगर हमें सर्विस चलानी है तो वी नीड अ नेटवर्क. हमें कंप्यूटर चाहिए और वो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए. अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर तो है लेकिन वो नेटवर्क से अटैच नहीं है तो हम लोग सर्विसेज को रन नहीं कर पाएंगे. नेटवर्क का काम केवल कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं होता बल्कि इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं. तो आने वाली वीडियोस में हम लोग ये भी देखेंगे कि नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम डाटा कम्युनिकेशंस क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकता है. तो पहले हम लोग नेटवर्क की डेफिनेशन और को देख लेते हैं. नेटवर्क इज नथिंग, इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेस. जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस आपस में जुड़ जाए यही नेटवर्क कहलाती है. और डिवाइसेस कैन बी कंप्यूटर, स्कैनर, फैक्स, एनी डिवाइस दैट कैन बी कम्युनिकेट बी अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सो अगर मेरे पास में कंप्यूटर है जिससे एक प्रिंटर भी अटैच्ड है, एक फैक्स मशीन भी अटैच है, तो ये एक नेटवर्क बन गया जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है. और ये जो कनेक्शन है मोस्टली हमारे घर पर जो प्रिंटर होते हैं और उनमें जो कनेक्शन है वो वायर होता है. यस ऑफ कोर्स कुछ प्रिंटर ऐसे भी हो सकते हैं जो वायरलेस भी हो. तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन गया जिसमें 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है. नाउ अब हम फोकस करते हैं नेटवर्किंग वर्ड्स पर. तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग एक प्रोसेस है टू क्रिएट नेटवर्क. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ अ प्रोसेस टू इनेबल devices to connected to each other and make a network. जब हम लोग कम नेटवर्क बनाते हैं उस प्रोसेस को ही नेटवर्किंग कहा जाता है. जैसे कि मैं जब अपने प्रिंटर की केबल्स को अपने लैपटॉप में अटैच करता हूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज नेटवर्किंग. जब नेटवर्किंग हो रही होती है या हो जाती है उसके बाद में एक नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है, देन हम लोग नेटवर्क को यूज़ करते हैं. तो एक बार हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया. तो हम बात कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशंस की जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वाया सेंडिंग डेटा. इसीलिए इसको डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है. ये डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉडल है ये बिल्कुल हमारे ह्यूमन कम्युनिकेशन के मॉडल के जैसा होता है. अगेन इसमें हमें 5 मेजर डिवाइसेस या 5 मेजर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट वन इज सेंडर विच इज जो कि डाटा सेंड करेगा. सेकेंड इज रिसीवर जो कि डाटा रिसीव करेगा. थर्ड वन इज मीडिया जो कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करेगा और एक नेटवर्क बनाएगा.
फोर्थ वन इज मैसेज, जो कि हमें डिलीवर करना है सेंडर टू रिसीवर। एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोकॉल, जो कि रूल्स है, जो कि ये बताते हैं कि दोनों डिवाइस आपस में कब और कैसे बात या कैसे कम्युनिकेट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि इन्हीं 5 कंपोनेंट को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेटवर्क एंड सर्विसेज। नेटवर्क के अंदर मोस्टली सेंडर रिसीवर मीडिया रखे हैं और सर्विसेज के अंदर प्रोटोकॉल और मैसेजेस रखे हैं। नेटवर्क सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि हम लोग बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की। मीनवाइल आप जितना भी कंटेंट इस वीडियो में होगा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें फॉर फ्यूचर। 2-3 वीडियो बाद में हम लोग एक असाइनमेंट भी देंगे जो कि इन वीडियो के ऊपर बेसिस पर होंगे। तो आप वीडियो के जो कंटेंट है उसको कॉपी में लिखें और आने वाले वीडियोस के अंदर या आने वाले समय में आगे आने वाले वीक्स में जो असाइनमेंट होंगे उसको भी आपको कंप्लीट कर सबमिट करने हैं। थैंक यू।